Okay, so let's start with it. So when you talk about the microbes, a large variety of microorganisms considered a major component of the biological system. जो हमारा biological system है, okay, so major number of microbes are found over there. Microbes are found over there. Okay, in this case, major number of microbes are found out there. So in this case, as they are present everywhere, so can I say the microbes are present everywhere? Everywhere means everywhere. Where they present? In case of soil, in case of air, in case of our bodies, we can say our bodies, or we can say animal bodies, and the animals and plant. In animals and in plants. So microbes are present everywhere. So the branch of science which deals with the study of different aspects of microorganisms is known as the microbiology. So when you talk about the microbiology, it's a branch of science. We can say branch of science that deals with all aspects of microbes. Okay, that point is very much clear to you. So, who is the father of microbiology? So, the answer is Louis Pasteur. Louis Pasteur is known as a father of microbiology. Father of microbiology. Okay, so who is that? Louis Pasteur. Now, as we moving forward, various microorganisms can be tolerated extreme conditions. Some microbes can be tolerate the extreme. Okay, let me write it properly for you. They can tolerate the extreme conditions. What kind of conditions? Let's study about that. Okay, like high salinity. If they are tolerate the high salinity, they are called halophiles. They are called what? Halophiles. If they found in the deep inside the temperature, deep inside where temperature is much more, they are called as the thermophiles. They are called what? Thermophiles. Exactly. And if they are tolerate the condition or environment, very highly acidic atmosphere, highly acidic atmosphere, देखो कहाँ कहाँ रहते हैं, राइट? तो उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो acidophiles. Okay, so these are the microbes found everywhere. So by infecting the living organisms, microorganisms cause a serious disease in the plants, in animals, and humans, right? They infect that. Thus, microorganisms affect human being both directly or indirectly. So those are the microbes. They can affect. They can affect directly or indirectly. Okay, that what we have talked about. Now moving forward, we are going to talk about microbes in the household products. Okay, so what are we going to talk about? Microbes in, let me write it, microbes in household product. Okay, so let's talk about it. So domestic microbiology is also called as a domestic microbiology, right? Okay, so the microbes have been used to make several products such as a curd, cheese, butter, and vinegar. So microbes in household, when talk about microbes in household, so how they helpful? First, we should know vinegar. Okay, in case of vinegar, it is produced by the fermentation process. It is produced by, or we can say it's a fermentation. It's a fermentation product
with the help of whom? Acetobacter acetari. Acetobacter aceti. Okay, it's a fermentation. Then we know the curd. Yes or no? We know the curd. So what is the curd? Lactobacillus, right? Yes. Curd is a product of what? It's a lactic acid bacteria. That is, we can say lab. Lactic acid bacteria lab. Grows in the milk and converts into the curd. Then we have a dosa, idli, and toddy. Dosa, idli, and like toddy. Toddy is famous in South India. The dough and plant sap are used after the fermentation in making this product. So यहाँ पे क्या use होता है? Dough or a plant sap. Plant sap. Then apart from that, we have a cheese. Cheese, right? Yes or no? ओके, एक ई कम हो गया चीज में आपने बोला ही नहीं चीज, सो इट्स अ चीज. So cheese is very famous, right? It is a microbial product of a milk. Various types of cheese are produced by the several organisms. We're going to study in that detail. Then we have a fiber separation. Fiber separation is also done by the some microbes. Like bacteria are used in a separation of fibers such as a flax, hemp, and jute. Some microbes are used. Okay, so what they do, for example, we want a jute. So jute fibers are immersed into the water, and this bacteria act on that, so the fiber gets separated out. Then butter also, it's a product, household product. Okay, so we are getting butter also. Okay, so this sweet and sour cream is churned in the presence of organisms like Streptococcus lactis. किससे मिलेगा ये? Streptococcus lactis and leuconostac or leuconostac, इनसे ये मिलेगा, right? Leuconostac citrivorumare, okay, to produce the butter. And obviously brain and dough also we are getting. Okay, so this is common yeast saccharomyces cerevisiae. ये कहाँ से मिलेगा? yeast होगा saccharomyces cerevisiae is used over here. Okay, so these are the microbes in household. We're going to talk about the cheese. Okay, don't worry about it. I'm going to talk in detail. Now, we're going to talk about the microbes in industrial products. Microbes in industrial products. So microbes in industrial products. So what they are? So microbes such as a bacteria, fungi, yeast. So what they use? Bacteria, fungi or yeast are useful in an industrial product. Are now used in a wide range of industrial processes. The study of micrograms in a industrial production process known as industrial micro. तो इनको जो यूज करके जो मिलेगा उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रो microbiology. Industrial microbiology. Okay, so the organisms are usually cultured in a large fermentation chamber. जो ये organisms होंगे, they are what? Large. कहाँ use होंगे ये? They are cultured in large fermented chambers. ठीक है, बहुत चाहिए रहेंगे, राइट? सो फर्मेंटेड चेम्बर्स में इसको क्या करेंगे? कल्टीवेट करेंगे. दैट इज कॉल्ड अ फर्मेंटर्स. उस चेम्बर्स को क्या बोलेंगे? फर्मेंटर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फर्मेंटर्स. Okay, they are called as a fermenters. So under control condition, all has to be, see, in fermenter all are what? All conditions are what? Controlled condition. Temperature, the aeration, okay, all the conditions, pH we can say, are the control conditions are maintained into the fermenter. Okay, this point is very much clear to you. Now we're going to study the products synthesized in industry.
So what are the products? So what are the product? The first one is antibiotics. First one is what? Antibiotics. Now antibiotics everybody knows, right? So let's study about it. So these are the chemical substances which are produced by the microbes. So ये क्या है? They are what? A chemical substance. When you talk about the antibiotics, let's focus on only antibiotics. Okay, they are chemical substance produced by the microbes. Okay, microbes produced. Now, in this, why they are producing? To kill or inhibit the growth of other diseases. To kill or inhibit other harmful बैक्टीरिया और माइक्रोब्स. सो कहने से दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, राइट? सो ये सिंपल है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में ये क्राइटेरिया यूज होगा. जैसे कि पेनिसिलियम सिक्रेट करेगा एंटीबायोटिक दूसरे उसके आजू बाजू कोई बैक्टीरिया और फंगाई ग्रो ना हो, तो वो यूज करेंगे उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए और डिस्कार्ड करने के लिए हमारे बॉडी से. तो ओके, तो एंटीबायोटिक्स का ये क्राइटेरिया यूज होता है. सो माइक्रोऑर्गेनिम्स व्हिच प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक इज कॉल्ड एंटीबायोट. तो समझो ये एंटीबायोटिक जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? एंटीबायोट. एंटीबायोट बोलेंगे उसको. क्या बोलेंगे? एंटीबायोट. दोज हु आर प्रोड्यूसिंग. द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय वैक्समैन. जो एंटीबायोटिक है टर्म वो किसने डिफाइन किया? वैक्समैन ने डिफाइन किया इन 1942 में. ओके, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन. सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था. ठीक है, वो भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, राइट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक्सीडेंटल. किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, उन्होंने की थी. So antibiotics and their sources we are going to talk about. So what are the antibiotics and their sources? So I'm going to write here. So let's write it. So first antibiotic we are going to talk about and the source. Okay. So first antibiotic is penicillin. पेनिसिलिन किसने किया था? ऑब्जर्व, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. सो उसका सोर्स क्या रहेगा? इट्स अ पेनिसिलियम नोक्टाटम. नोक्टाटम, पेनिसिलियम नोक्टाटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. क्राइसोजेनम. Okay. Then next is streptomycin. Strepto, streptomycin. इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. ओके. देन थर्ड अरिथ्रोमाइसिन. अरिथ्रोमाइसिन. अरिथ्रोमाइसिन is also Streptococcus erythris. Okay, the fourth one, that is chlorotetracycline. chlorotetracycline. अभी इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरोफेसियंस. ऑरोफेसियंस. And the fifth one, that is teramycin. teramycin किसका है? तेरा है. Streptococcus rhinosus. Okay, so these are the antibiotics and their source we are just talk about. Now the next product that we going to talk about is, after antibiotic we are going to talk about the alcohol. It's an industrial product we are talking about. So in this case we should know about the alcohol. Okay, so the most important alcohol, that is ethanol. alcohol सबसे important कौन सा है? इथेनॉल है. मिथेनॉल हम ड्रिंक नहीं कर सकते. इथेनॉल C2H5OH. ओके, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट जर्मिसाइड. ये यूज कैसे होता है? एज अ सॉल्वेंट होगा मेडिसिन में. एज अ जर्मिसाइड भी इसको यूज करते हैं. ओके, इन असेप्टिक एरिया वी कैन टॉक अबाउट. एज अ बेवरेज भी यूज करते हैं, राइट? एंड एज अ एंटी फ्रीज.
एंटी फ्रीज भी उसको यूज करते हैं। ओके, ऑब्वियसली और क्या यूज करेंगे, एज अ फ्यूल भी यूज करेंगे, राइट, एंड अ डिप्रेसेंट, और क्या यूज करेंगे, एज अ डिप्रेसेंट, राइट, गम भुलाने के लिए अल्कोहल यूज करते हैं। इट्स अ वर्सटाइल केमिकल इंटरमीडिएट फॉर द अदर केमिकल। तो ये क्या है, वर्सटाइल है, बिकॉज ऑफ इट्स यूज, इट्स अ वर्सटाइल केमिकल की बहुत जगह इसका यूज होता है, राइट। सो द मोस्ट वाइडली यूज शुगर फॉर इथेनॉल फर्मेंटेशन इज अ ब्लैक स्ट्रैप मोलासिस। सो अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लैक स्ट्रैप मोलासिस। ये शुगर है जिससे अल्कोहल बनाएंगे। इट कंटेन्स अबाउट 35 to 40%, इसके अंदर क्या रहेगा, 35 to 40% सुक्रोज रहेगा, 10 to 15 और वी कैन से 15 to 20% इनवर्ट शुगर रहेगा इसके पास, इनवर्ट शुगर रहेगा इसके पास, ठीक है। एंड इनवर्ट शुगर्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनवर्ट शुगर में क्या आएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहेगा। तो 35% हो गया, 50 to 20% हो गया, और अभी क्या बचा है, 28 to 35% इसके पास होगा नॉन शुगर सॉलिड, नॉन शुगर सॉलिड कंटेंट रहेगा इसके पास। ओके, द होल प्रोसेस ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन कैन बी समराइज। सो हाउ कैन बी समराइज द process? Okay, process we are going to talk about. Okay, let me write it properly. So कैसे ये प्रोसेस करते हैं शुगर, तो देखो यहाँ पे C6H12O6 ये आपका क्या है, ग्लूकोज। ओके, इसको ईस्ट के साथ इंटरेक्ट करने देंगे तो क्या बनेगा आपका, इथेनॉल बनेगा। 2 मॉलिक्यूल C2H5OH आपका क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ओके, along with along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, तो ये आपका इथेनॉल यहां से बन रहा है। ओके, सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, अभी यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, विच ऑर्गेनिजम्स आर यूज, द फर्स्ट वन इज ईस्ट। ईस्ट में भी कौन सा यूज होता है, सैकेरोमाइसिस सर्विसे, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। ओके, then it's also use a bacteria. Which bacteria is used here, clostridium sporogens, clostridium, okay, is used as what, clostridium sporo, okay, it's a clostridium what, it's a clostridium sporogenus, genus. Okay, then it also use a clostridium spinoids, clostridium spinoids. So can I say clostridium species? Okay, and leuconostac mesenteroids, leuconostac mesenteroid, mesenteroids. Okay, in bacteria they use. Now, apart from the other alcohol, okay, अभी अल्कोहल तो हो गया हमारा एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। थर्ड जो यूज होता है दैट इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अभी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में क्या यूज होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। माइक्रोनम्स आर ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ सेवरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अभी कौन से है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल। So I'm making a chart for you. So we are going to talk about the product here, which microbes is used and their uses. So first, glutamic acid. Glutamic acid. It is derived from the Corynebacterium glutamium. Corynebacterium glutamicium. Okay, flavor. It's like used as a flavor enhancer. It's used as a flavor enhancer. Okay, that is Corynebacterium glutamicum. Me
Glutamicum. Then lysine and methionine. Lysine and methionine. अभी ये किससे मिलेगा? ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम. ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम से मिलेगा. अभी यूज क्या रहेगा? सीरियल फूड सप्लीमेंट में यूज होगा. ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में यूज होगा, तो वैसे ही बात कर रहे हैं, राइट? यस. उसके बाद वी हैव अ फिनाइल एलेनाइन एंड एस्पार्टिक एसिड. फिनाइल एलेनाइन एंड एस्पार्टिक एसिड सब न्यूट्रिशन है, राइट? सो कुछ से मिलते हैं? कोरिनोबैक्टीरियम स्पीशीज से मिलते हैं. फिनाइल एलेनाइन एसिड किससे? कोरिनोबैक्टीरियम स्पीशीज से ही मिलते हैं. ठीक है, अलोंग विथ ई कोलाई. ठीक है, इट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर. ये क्या अस्पार्टिक एसिड और क्या है? आर्टिफिशियल. इट्स अ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. Okay, they are artificial sweeteners. Then let's talk about the vitamins. So let's make a space over here so we can write vitamins. अभी vitamins कौन से मिलते हैं? So vitamin B12. जो B12 है वो किससे मिलता है? सूडोमोनास स्पीशीज से मिलता है. सूडोमोनास स्पीशीज से मिलता है. उसकी यूज क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट है. जो भी विटामिन रहेंगे वो क्या रहेंगे? हेल्थ सप्लीमेंट रहेंगे. ठीक है, B12 हो गया. देन B2 के क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन. इज आल्सो कॉल्ड एज अ राइबोफ्लेविन. ये भी क्या आपका ही हेल्थ सप्लीमेंट है. ये किससे मिलता है? एस्पाइगोस्पाई. इट्स डिराइव फ्रॉम एस्पाई. okay, let me write properly. It is derived from SHBAY cosipi. Okay, then vitamin C. Vitamin C is ascorbic acid. It is Acetobacterium species. Acetobacterium species से मिलता है. It's also a health supplement. Then we have a proteins. Proteins किससे मिलते हैं? Chlorella and spirulina. Spirulina is a very rich thing, right? उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं. And chlorella. Okay, ये क्या है? Food additives है. These are what? Food additives. There are food additives. Okay, so these are all about the products that we have talked about. Now, as we done this microbes as a food supplement, now we are focusing on organic acids. The fourth product होगा हमारा क्या रहेगा? Organic acids रहेगा. तो organic acids क्या होते हैं? Several organic acids are produced by the microorganisms. So organic acid produced by microbes. So can I write this in here? So it will be better to make a chart. Organic acids by microbes. Okay, we are going to talk about in detail. So first है आपका citric acid. First क्या आता है? Citric acid. Okay, ये जो citric acid है, it is the first isolated in a 1784 by the Carl William Schill from lemon juice. ये किससे है? Lemon juice का first डिस्कवर हुआ था. किसने किया था? कार्ल विलियम शिल. कार्ल विलियम शिल ने किया था. अभी इसका इंडस्ट्रियली ये क्या है? फंगस से डिराइव होता है. इंडस्ट्री में अगर उसको डिराइव करना है तो एक फंगस है. उसका नाम क्या है बच्चों? इट्स एस्पेरागस निगर. एस्पेरागस एस्पेरिगिलस निगो से डिराइव होता है. इट्स प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड. देन वी हैव अ लैक्टिक एसिड. क्या है हमारे पास? लैक्टिक एसिड है.
ये जो lactic acid है, it is the first organic acid is produced by the fermentation process. We can say first organic acid produced by fermentation. Okay. It is produced by the Streptococcus lactis. कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे Streptococcus lactis से प्रोड्यूस होते हैं एंड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज भी यहाँ पे है along with rhizopus. Okay. Now apart from that we have a acetic acid. एसिटिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, विनेगर पीते हैं, गलती से आप पी लेते हो उसको, है ना, पानी समझ के। कैसा टेस्ट रहता है उसका, बहुत सारा रहता है, राइट। इट इज प्रोड्यूस इन अ टू स्टेप कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल। फर्स्ट क्या होगा, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ओके, एंड द सेकेंड स्टेप दैट अल्कोहल टू एसिड, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है with the help of bacteria, that's acetobacter species. Okay, then we have a kojic acid, अब ये kojic acid क्या है, it is produced industrially by the asparagus, not niger is what, citric acid. This is also aspergillus oryzae. Okay, it is used in a skin whitening agent. Is what is used in a skin whitening agent. So cosmetic में बहुत डिमांड होगी, right? And flavor enhancer. And what? Flavor enhancer. And last one, that is gluconic acid. Gluconic acid. ये ग्लूकोनिक एसिड है, इट इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली बाय एस्पेरागस निगर. तो सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड इज एस्पेरागस निगर से प्रोड्यूस होता है. ओके, इट इज यूज इन अ मेटल क्लीनिंग. कहाँ से यूज होता है, मेटल क्लीनिंग के लिए यूज होता है ये. And the therapy for calcium and iron deficiency, calcium and iron deficiency therapy में use होता है. Okay, so these are the organic acids we are getting. Now moving to the next, we have some other organic acids synthesized by various microbes. So we have other organic acids. Okay, so let me write for you organic acids and microorganisms. Okay, so first one is a propionic acid. First one is what, propionic acid. अब ये प्रोपियोनिक एसिड कौन ये करता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम. देखो ये इजी है याद रखने के लिए, प्रोपिनोबैक्टीरियम इज अ सोर्स. देन इसके बाद है हमारा ब्यूटारिक एसिड. ब्यूटारिक एसिड अभी ये कौन देगा, क्लोस्ट्रीडियम देगा. कौन देगा, क्लोस्ट्रीडियम देगा. क्लोस्ट्रीडियम along with एसिटोबैक्टीरियम, so bacterium. Okay, then we have oxalic acid. क्या है हमारे पास, oxalic acid है. और oxalic acid is asparagus C, aspergillus species के वाया मिलेगा. then gallic acid. अभी मुझे बोलो एस्पेरागस कहाँ का देखा था, ऊपर हमने सिट्रिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी उससे मिलेगा. एंड ग्लूकोनिक और नॉट ग्लूकोनिक इज दैट वी डन, राइट. नाउ गैलिक एसिड. गैलिक एसिड आल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम aspergillus. See, oryzae is for gluconic acid, citric acid asparagus niger. तो asparagus niger में और एक ऐड करो ग्लूकोनिक गैलिक एसिड को. ओके, देन इटा, let me write it properly. Sometimes the pen is not working properly, so I have to like pressurize it. Itaconic acid. Itaconic acid derived from Aetherius, right? Okay, so these are the other. Now as we moving to the next part, we are going to talk about the enzymes.
We are going to talk about the enzyme. The next product is fifth one product is enzymes. So also enzymes we're getting from microbes. Okay. So enzymes are microbe synthesize large number of enzymes. So ये जो enzymes है are large number of microbes. इसको क्या करते हैं? Synthesize करते हैं. They got synthesized by this. Okay. So which have a significant economic importance. ये जो enzymes है इनको इकोनॉमिक क्या हो रहा है ये? लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. सम ऑफ these enzymes are given in the following table that we are going to write. I'm going to write over there. So enzyme producing the micrograms, let's talk about that in detail. So I'm going to write about here enzyme. Okay, here the organisms and here are the uses. So let's talk about alpha amylase. Alpha amylase is derived from the aspergillus species. Okay, और ये यूज होता है लॉन्ड्री में एज अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट. ओके, एंजाइम है ये. देन बीटा अमाइलेस ये किससे मिलेगा? बैसिलस सबटालिस से मिलेगा. बैसिलस सबटालस से मिलेगा और उसका यूज क्या है? ब्रीविंग में यूज होगा. Okay, then we have a cellulose. We have a cellulase. Cellulase ट्राइकोडर्मा से मिलेगा. ट्राइकोडर्मा से मिलेगा. उसकी स्पीशीज क्या है? विरिडी. सो यूज क्या है? फ्रूट जूस, कॉफी और पेपर. फ्रूट जूस कॉफी में यूज होगा एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा ये एंजाइम. ओके, जो हमारे पेपर बनते हैं राइट, बैम्बू ट्री से बनते हैं और जो वुडन से बनते हैं, तो उसको ब्लीच करने के लिए. देन इनवर्टेस, वी हैव व्हाट? इनवर्टेस. इनवर्टेस जो एंजाइम है वो किससे मिलता है? सैक्रोमाइसस सर्विसिए से मिलता है. सर्विसिए से मिलता है. ओके, स्वीट मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है. कहाँ यूज होता है? स्वीट मैन्युफैक्चरिंग. देन आफ्टर दैट वी हैव अ लैक्टेज. जो लैक्टेज है वी आर गेटिंग फ्रॉम एस्पेरागस निगर से. एस्पेरागस निगर से मिलता है. वॉशिंग पाउडर में यूज होता है. कहाँ यूज होता है? वॉशिंग पाउडर में यूज होता है. ओके, टैनिंग एंड चीज प्रोडक्शन में भी यूज होता है. लेदर टैनिंग, लेदर क्या होता है? यस, कपड़ा राइट. नहीं, चमड़ी जो होती है राइट, लेदर टैनिंग में यूज होता है वहां पे. एंड चीज प्रोडक्शन. Then apart from that we have a two more, that is pectinase. पेक्टिनेज, चलो नाम से ही बोलो ना क्या है. पेक्टिनेज है तो पेक्टिनेज क्या होगा? लेदर टैनिंग में यूज होता है. लेदर टैनिंग में यूज होता है along with मीट टेंडराइजर. मीट टेंडराइजर, मीट को प्रॉपर रखने के लिए पेक्टिनेज यूज होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए राइट. एस्पेरस निगर से ही ये मिलता है. ओके, देन वी हैव अ प्रोटीएजेस. वी हैव व्हाट? प्रोटीएजेस. अभी प्रोटीएजेस किससे मिलते हैं? एस्पेरागस ओराइजे में मिलते हैं. अभी ओराइजे में हमने और एक पढ़ा था, ग्लूकोनोइक एसिड पढ़ा था राइट. तो ओराइजे में क्या होगा? यस. ओके, 1 सेकेंड मैं बच्चा पार्टी. एक सेकेंड थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है. चलो, डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, आई विल राइट इट प्रॉपरली फॉर यू. चलो, ये जो है ना पेक्टिनेस मिलता है एस्पेरस नीगर से. ये बराबर बोला राइट. एस्पेरस नीगर और पेक्टिनेस यूज होता है फ्रूट जूस में. किस में यूज होता है? फ्रूट जूस में होता है. ओके, एंड देन प्रोटीएजेस जो है वो होता है एस्पेरागस ओराइजेस से मिलता है. ओके, और ये यूज होता है लेदर टैनिंग में. ये किस में होता है? लेदर टैनिंग में यूज होता है अलोंग विथ मीट टेंडराइजर.
टेंडराइजर में यूज होता है। ओके, तो प्रोटीएजेस है, पेक्टिनेजेस, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई करेक्टेड इट। ओके, नाउ वी हैव अ रेनिन, डबल एन, रेनिन विद डबल एन, दैट इज काइमोसिन। ये हमें मिलता है ई कोलाई और म्यूकर से मिलता है, ई कोलाई और म्यूकर से मिलता है। अभी इसका यूज क्या है, चीज प्रोडक्शन में होता है। किस में होता है ये, चीज प्रोडक्शन में यूज होता है। ओके, नाउ we have done pretty much about the microbes. Now we are moving to the microbes in the healthcare and medicine. Now we are going for microbes in healthcare. Let me write it for you. Microbes in healthcare and medicine. Okay. So we also term this medical. We also term this a medical microbiology. Okay, medical microbiology में क्या पढ़ना है, so let's talk about it. Microbes are used to produce the insulin and growth hormone. तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, राइट, एंड एंटीबॉडीज। एंड किसके लिए यूज होगा, एंटीबॉडीज के लिए यूज करेंगे। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज सच एज अ कैंसर। सो ये ना कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होते हैं। ओके, रिसर्च शो दैट क्लोस्ट्रीडिया कैन सिलेक्टिवली टारगेट द कैंसर सेल। तो इसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रीडिया जो है वो टारगेट करता है ओनली कैंसर सेल को। अभी कैंसर सेल अंडर को क्या होता है, मेटास्टेसिस। अभी मेटास्टेसिस मतलब क्या है, दे आर कंटिन्यूसली ग्रो, उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, राइट, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, राइट। तो ये जो क्लॉस्ट्रिडियम है इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके, तो उसके लिए इंडिकेशन ये है। द वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ नॉन पैथोजेनिक क्लोस्ट्रिडिया हैव शोन टू इनफिल्ट्रेट एंड रेप्लिकेट विद इन द सॉलिड ट्यूमर। तो ये क्या होता है, सॉलिड ट्यूमर होता है, उसको ये क्या करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम तबाह कर देता है, राइट। सो क्लोस्ट्रिडिया देयरफॉर हैव द पोटेंशियल टू डिलीवर द थेराप्यूटिक प्रोटीन्स टू द ट्यूमर। तो ये क्लोस्ट्रिडिया क्या लेके जाएगा, थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक व्हाट, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स जो कि यूज होंगे। तो ये कहने से क्लोस्ट्रिडिया का टारगेट क्या है, कैंसर सेल। तो अगर हमें कैंसर के पास कुछ पहुंचाना है, कैंसर के पास कुछ भेजना है, दैट इज थेराप्यूटिक प्रोटीन्स पहुंचाना है, तो व्हाट हु विल यूज, क्लोस्ट्रिडिया विल बी यूज। Okay, now we have a lactobacillus. यहीं पे in medical microbiology we have a lactobacillus. Lactobacillus सिर्फ ये कर्ड फॉर्मेशन का काम नहीं करते, तो दे स्पीशीज हैव अ थेरापेटिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लामेटरी, दे ऑल्सो हैव अ एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटी कैंसर एक्टिविटीज, एंटी कैंसर एक्टिविटीज there. Serum and vaccines produced by the various microorganisms are used to induce immunity among the human beings. So जो immunity है, okay, external we can say that serum से आती है and vaccine से आती है, right? तो इसके लिए भी use क्या होते हैं, some microbes use होते हैं। We are studying that. Now अभी सबसे important देखो क्या है यहाँ पे, the alkaloid released from the claviceps purpurae, claviceps, claviceps, attention here, purpurae, ये जो क्या करता है, अल्कलॉइड रिलीज करता है। ओके, कौन सा अल्कलॉइड रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एर्गोटेनिन, एर्गो एर्गोटाइनिन। और जो ये एर्गोटाइनिन है, एर्गोटाइनिन जो है स्टिमुलेट द मसल ऑफ यूट्रस। ये क्या करता है, यूट्रस के मसल, जैसे ही यूट्रस के मसल ये वर्ड सुना इसका मतलब प्रेगनेंसी में काम करेगा, राइट। एंड यूज्ड टू असिस्ट द चाइल्ड बर्थ, राइट, चाइल्ड बर्थ में ये असिस्ट करेगा। ओके, एंड कंट्रोल्स द यूटेराइन हेमोरेज, और ये किसको करेगा, और ये क्या करेगा, कंट्रोल्स यूटेराइन हेमोरेज। ओके, जो ब्लड आता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी उसको कम करेगा डिलीवरी के टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दी माइक्रोब्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो भी हम अभी लिखने जा रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर राइटिंग इट प्रॉपरली. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी प्रोडक्ट्स. ओके, लेट मी इरेज फॉर इट बिकॉज ये ज़्यादा जूम हो गया है शायद से. ओके 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 ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी, वेयर इज देयर. ओके, तो अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में. Give me 1 second. I am not able to write it properly. Something is happening. चलो एक बार मैं 2 मिनट दीजिए मुझे. ये है प्रोडक्ट्स, क्यों इतना ये हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू राइट इट सीमलेसली. थोड़ा सा प्रॉब्लम है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, एम आई एबल टू राइट नाउ? No, still there is a problem. Just give me 1 second. Something is issue with this pad, I guess. Just give me 1 second. Till that time, just memorize what we have done. Okay, let's talk about the products. Still not able to write properly. Okay, what happened to this? Let me figure out this. Just give me 2 minutes, guys. Okay. Okay. Now it's okay. Products and microbes we are going to talk about. So first product, the first product is cyclosporin A. Cyclosporin A. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इट इज वन मेंबर साइक्लिक्स ओलिगोपेप्टाइड एंड इम्यूनोसप्रेसिव. ये क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव है. अभी इम्यूनोसप्रेसिव है तो डेफिनेटली कहाँ यूज होगा? दैट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ द, inhibits activation of T cell. Okay. Response to transplant organ. Response to transplanted organ. ठीक है. और ये किससे मिलेगा? कौन से माइक्रोब से मिलेगा हमें? वी आर गेटिंग ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म. पॉली sporum. Don't get confused with this. Okay, and what? Tell me. Tolypocladium. Tolypocladium inflatum. Inflatum. Okay, ये दोनों से मिलेगा. देन वी हैव अ स्टैटिन्स. क्या है हमारे पास? स्टैटिन्स है. अभी स्टैटिन्स कहाँ यूज होते हैं मोस्टली? यस, कोलेस्ट्रॉल को सप्रेस करने के लिए, राइट? सो इनहिबिट, दे आर व्हाट? इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम HMG, coenzyme A reductase. Okay, lowers what? They lowers LDL, low density कोलेस्ट्रॉल जो होता है, LDL लेवल इसको क्या करते हैं? कम करते हैं. अभी ये हमें कहाँ से मिलेगा? वी आर गेटिंग फ्रॉम ईस्ट मोनास्कस. ईस्ट ईस्ट है ये, मोनास्कस पर प्यूरियस से मिलेगा. Okay, so we done with this. Now, as we done with this important things, let's talk about microbes as a biofertilizers. So microbes as a biofertilizers. Okay, तो ये देखेंगे अभी क्या है. Is also term as a agricultural microbiology. Okay, so let's study about it. So to protect the environment and control the soil pollution, the biofertilizers and the manures are used in a modern agriculture. Term as a organic farming. तो ये सब यूज कहाँ होते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं. ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं.
फर्स्ट इज द बायो फर्टिलाइजर्स, दिस आर द न्यूट्रिएंट्स मटेरियल। तो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेट मी टेक अ ब्लू पेन नाउ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी बायो फर्टिलाइजर्स। जो ये बायो फर्टिलाइजर्स है, ये क्या है? दिस आर अ न्यूट्रिएंट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किससे डिराइव करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है ये। सो कैसे काम करते हैं? दिस आर ऑब्टेन from the nutrient material obtained from the living organisms or their remains part, right, used for enhancing the fertility of soil. They increase the fertility, increase fertility of soil. Okay, which can bring about the nutrient availability to the crop plants. The main source of biofertilizers are, इसके source क्या है, main sources क्या है इसके? So let's study about that. First is a nitrogen fixing bacteria. First is what? Nitrogen N2 fixing bacteria. Okay, जो क्या होते हैं? फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक होते हैं। दे आर फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट, हमने पढ़ा ये चीज। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या होते हैं? फ्री लिविंग प्लस सिम्बायोटिक रहेंगे, symbiotics. Okay, and the third type is mycorrhiza fungi. Mycorrhizal fungi. Okay, so these are the, now here we have to take a note of all this. Okay, so क्या note है यहाँ पे? So let's study about this note. नेचुरल प्रोसेस फिक्स अबाउट, जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल जो प्रोसेस है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, वो 190 इंटू 10⁻12 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करता है एवरी ईयर। ओके, पूरा थ्रू लाइटनिंग जो होती है, थंडरिंग जो होती है, उससे 8% फिक्सेशन होता है। ओके, फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, उससे 2% नाइट्रोजन फिक्स होता है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो कितना होता है पता है? 90%। सो हु वॉन हियर? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वॉन हियर। बहुत ज्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। सो समझो माइक्रोब्स ही नहीं रहे तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं होगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So naturally in the form of biofertilizers. Nitrogen fertilizers are often not required for a rice cultivation as fern azolla has the Anabenna azole as a symbiote. मतलब ये जो हमने अभी सीखा, देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है, जो राइस कल्टीवेशन हम करते हैं ना, उसमें ये बायो फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों भाई, क्यों नहीं होते? क्योंकि राइस जो होता है ना, जो राइस प्लांट, ओके, इट उसके साथ एक फर्न कल्टीवेट होता है, दैट इज कॉल्ड अजोला। ओके, और ये जो अजोला है, इट हैज अ अनाबेना अजोले। अजोले ये क्या है? एज अ सिम्बायोट है, इसके साथ क्या है? सिम बायोन की तरह काम करता है। और ये क्या करेगा? N2 फिक्सेशन करेगा। तो राइस कल्टीवेशन में हमें बायो फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। ओके, तो विच फिक्सेस N2 एंड ग्रो थिकली इनटू द राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में क्या मिलेगा आपको? अजोला, दैट इज अनाबेना अजोले, यू विल बी फाइंड दैट। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आप साइंटिफिक नाम लिखते हो तो ये जो सेकेंड लेटर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। ओके, सो दिस आर दी पॉइंट्स। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स विद देयर सिम्बायोटिक होस्ट, हमें अभी ये पढ़ना है। ओके, ये टॉपिक पढ़ना है। तो host plant, let's talk about the host plant and let's talk about the nitrogen fixation symbiont. Okay, चलो let's study that. First is a leguminous, जो first है वो क्या है? leguminous है। अभी leguminous में क्या है? legumes and parasponia, legumes plus parasponia।
ओके, लेग्यूम्स एंड पैरास्पोनियम। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन सिम्बायोटिक के बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज अजोराइजोबियम, अजोराइजोबियम, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको लिखा होगा। देन फोटोराइजोबियम, फोटोराइजोबियम, देन राइजोबियम, राइजोबियम एंड सीनोराइजोबियम। ओके, ये सब सारे। देन सेकेंड में आपका आता है एक्टिनोराइजल। क्या आएगा आपका? एक्टिनोराइजल, एक्टिनोराइजल, राइजल। ये क्या है? ट्री में पाया जाएगा, श्रब में पाया जाएगा। ओके, क्या इसका सिम्बायोट कौन है? ये फ्रैंकिया। ओके, एक्टिनोराइजल में क्या है? फ्रैंकिया। अभी ट्री में कौन सा पाया जाता है? ट्री है इसका एल्डर ट्री, श्रब है इसका सियांथोस, सैंथोस। ओके, देन वी हैव अ थर्ड वन इज गनेरा। ओके, गनेरा come along with nostoc. Then fourth we have अजोला। अजोला अभी हमने देखा ना, राइस फर्न में होता है, राइट, अनाबेना। ओके, तो अभी देखा हमने, तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे शुगर के। शुगर में में क्या होगा? एसिटोबैक्टीरियम। क्या रहेगा? एसिटोबैक्टीरियम डाइजोट्रो, डाइसोट्रोप्स रहेगा। ठीक है, ओके, सो वी हैव डन विद दिस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट? बायो पेस्टिसाइड्स। अभी ये छोटू सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो पेस्टिसाइड्स, देखो बायो पेस्टिसाइड्स है यहाँ पे। सो माइक्रोब्स such as the bacteria, fungi, viruses, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सब माइक्रोब्स। देयर प्रोडक्ट्स आर विच यूज टू कंट्रोल द पेस्ट। इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, ये यूज करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट। ओके, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। ओके, सो जो बैक्टीरियल है हमारे पास फंगल है, हमारे पास प्रोटोजोअन है, हमारे पास वायरल है। तो जो बैक्टीरियल है वो है हमारा बैसिलस thuringiensis। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। बैसिलस thuringiensis, thuringiensis जो बोलवॉर्म में यूज होता है मोस्टली। ओके, देन फंगल में वी हैव अ मेटाराइजियम, मेटाराइजियम। देन वी हैव अ पीयू, ये यू है, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी यू वेरिया, बीवेरिया। ओके, एंड along with that we have a verticillium, किसमें? फंगल में। देन इन प्रोटोजोआ वी हैव अ शीजोग्रेग्राइन। क्या है? जिप जैसे लपलपाई, शीजोग्रेग्राइन, शीजोग्रेग्राइन। ओके, एंड इन वायरल वी हैव अ एनपीवी। एनपीवी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस। ओके, अलोंग विथ जीवी। अभी जीवी क्या है? ग्रैन्युलोसिस वायरसेस, ग्रैन्युलोसिस वायरसेस। ओके, ये सब है। सो दैट इज अ बायो पेस्टिसाइड्स। ओके, आफ्टर बायो पेस्टिसाइड्स वी हैव अ बायो हर्बिसाइड्स, वी हैव अ बायो हर्बिसाइड्स। अभी बायो हर्बिसाइड्स में क्या है? These are the organisms and their products which destroy the weeds. ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं। वीड नहीं चाहिए हमें, राइट? विच वीड्स हार्मिंग द यूजफुल प्लांट, तो हमें वीड को निकालना। द फर्स्ट बायो हर्बिसाइड वाज द माइको हर्बिसाइड। फर्स्ट क्या कौन सा था यूज किया था? माइको हर्बिसाइड, which was based on the fungus। किस
किससे डिराइव होता है? फंगस से डिराइव होता है। विच फंगस? लेट मी राइट इट प्रॉपरली। चलो, किस फंगस होता है? फंगस होता है। कौन सी फंगस होती है भाई यहाँ पे? विच फंगस? फंगस फाइटोथोरा। लेट मी राइट फाइटो फाइटोथोरा palmivora. Phytophthora palmivora. Okay, these are the things. Now let's talk about bioherbicides in detail. चलो, तो हम लिखते हैं बायो हर्बिसाइड्स, बीच में बायो हर्बिसाइड्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मूथर क्रॉप्स. फर्स्ट क्या है हमारे? स्मूथर. क्या हो रहा है इस पेन को फिर से? स्मूथर क्रॉप्स. ये देखो, द क्रॉप्स विच डू नॉट अलाउ एनी वीड टू ग्रो. वीड ग्रो नहीं करेगी, राइट? नो वीड ग्रो. देयर विल बी, राइट, वी हैव टू राइट व्हाट? देयर विल बी नो वीड ग्रो. ओके, नियर बाय इट्स विसिनिटी आर कॉल्ड स्मूथर क्रॉप्स. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसमें? स्वीट क्लोवर, स्वीट क्लोवर, सोयाबीन एंड अल्फा अल्फा. अल्फा अल्फा, इनके आजू बाजू कोई भी वीड ग्रो नहीं करेगा अपने आप में, राइट? देन वी हैव अ माइको हर्बिसाइड्स. माइको हर्बिसाइड्स. माइको हर्बिसाइड्स क्या है? डिवाइन एंड कोलिगो आर अ फंगल स्पोर्स. कौन से? डिवाइन एंड कोलिगो. इट्स सॉरी, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों. क्या है? डिवाइन एंड कोलिगो आर अ फंगल स्पोर्स. ये क्या है? फंगल स्पोर्स है. ओके, फंगल स्पोर्स विच आर स्प्रेड ओवर द वीड्स. ये क्या करते हैं? स्प्रेड ओवर वीड, जो वीड को डिस्ट्रॉय करेंगे. देन वी हैव अ ट्रांसजेनिक प्लांट. क्या हमारे पास? ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट को ही क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड प्लांट. तो इसमें क्या होगा? थ्रू द जीन ट्रांसफर. क्या होगा यहाँ पे? थ्रू द जीन ट्रांसफर, इसलिए तो उसको मॉडिफाइड प्लांट बोलते हैं, राइट? रिजल्टेड जेनेटिकली इंजीनियर होंगे, राइट? प्लांट डेवलप रेजिस्टेंस. ये क्या करेंगे? टू द रेजिस्टेंस टू वीड. ओके, वीट का रेजिस्टेंट होगा. देन वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी है. कौन से? लेट्स सी. वेजिटेबल्स. कौन से वेजिटेबल्स है भाई? देखो यहाँ पे, ये एरो यहाँ तक आना चाहिए, राइट? चलो ड्रॉ करते हैं इस एरो को यहाँ तक. ओके, वेजिटेबल्स में सर्टेन वीड्स सच एज अ amaranthus, such a weed such as a amaranthus and chenopodium. चीनोपोडियम, क्या नाम है ना? चीनोपोडियम, चीनो. यूज एज अ फॉडर और वेजिटेबल. ये वीड्स है, ठीक है, बट एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. एमेरैंथस एंड चिनोपोडियम. देन वी हैव अ प्रेडिएटर हर्बीवोर. वी हैव अ, ये मैं थोड़ा अलग से लिखूंगा, प्रेडिएटर हर्बीवोर. अभी इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? इन दिस सम इंसेक्ट लाइक बीटल्स, कुछ होते हैं बीटल्स, ओके, आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स. क्या करेंगे? वीड को कंट्रोल करेंगे खा के, इन शॉर्ट, राइट? जैसे कि कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टोब्लास्टिस. देन कैक्ट्रोअम, कैक्ट्रोअम एंड क्राइसोलिना बीटल, क्राइसोलिना बीटल. ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट वी हैव डन. Okay, make a note of this, my dear students. Okay, now as we done this, we are going to the next topic, that is bioinsecticides. Bioinsecticides.
अब ये बायो इंसेक्टिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स यूज फॉर इंसेक्ट कंट्रोल आर कॉल्ड बायो इंसेक्टिसाइड्स. ये क्या करेंगे, जो लिविंग है ना हमारे ऑर्गेनिजम्स और उनके जो प्रोडक्ट्स है, यूज करेंगे इंसेक्ट कंट्रोलर, एज ए इंसेक्ट कंट्रोलर. ओके. दिस इंक्लूड पैथोजेंस और पैरासाइट्स. इसमें क्या इंक्लूड होता है, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स यूज होते हैं. एंड क्या यूज होता है, प्रेडिएटर्स यूज होते हैं, प्रेडिएटर्स. ओके. Some important bioinsecticide we are going to talk about. First is a sporine. Okay, I'm writing it in a short notes. Okay, so first is sporine. First commercial bioinsecticide obtained from the Bacillus thuringiensis. से किससे मिलता है, Bacillus thuringiensis से मिलता है sporine. ठीक है. Then second, doom. We have what, doom नहीं रे बाबा, doom है. It is a mixture of Bacillus papillae and Bacillus lentivorus, which has been used to control the Japanese beetle papillae. किसके यूज होता है, Japanese beetle papillae कंट्रोल के लिए यूज होता है. ठीक है. देन वी हैव अ लेडी बग. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेडी बग. इसमें से आपको ये मैं एक्स्ट्रा मार्क कर लेता हूँ. लेडी बग किसके लिए यूज होता है, लेडी बर्ड बीटल है. इट्स प्रेइंग मैंटिस. प्रेइंग, ये जो लेडी बग है वो प्रेइंग मैंटिस को ही खा डालती है. ठीक है. कैन कंट्रोल द स्केल इंसेक्ट्स और अफीड्स. और किसको, अफीड्स को कंट्रोल करती है, जो कि क्या होता है, पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल्स है राइट. कॉटन और एप्पल के, इसमें कॉटन एंड एप्पल के खेती में ये जो प्रेइंग मैंटिस और एफिड्स है उसको कौन कंट्रोल करता है, लेडी बग कंट्रोल करता है. देन वी हैव अ माइकार. यस, माइकार. माइकार क्या है देखो, it is a product obtained from the fungus. It is used to control the citrus rust mite. कंट्रोल क्या करता है, सिट्रस रस्ट माइट को कंट्रोल करता. ठीक है. देन बोवेरिन. बोवेरिन है, बोवेरिन क्या करता है देखो, इट इज ऑल्सो derived from the fungus. Okay, controlling the Colorado potato beetle. Colorado potato beetle को ही क्या करता है, ये कंट्रोल करता है. ठीक है. Then we have a fungus Entomyra ignoris, may be used for controlling green peach aphids. Then we have fungus Pseudomyces is useful to control the mosquito larvae. तो मुझे लगता है कि ये important है. This one fungus, कौन सी फंगस है, Pseudomyces. कंट्रोल क्या करते हैं, मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करती है. ओके, दैट इज द थिंग. Now we are moving to the natural insecticides and their sources. Natural insecticides and their sources we are going to talk about. So we have rotenons, जो कि रूट ऑफ डेरिस लेप्टिका में पाए जाते हैं. रूट्स ऑफ डेरिस एलेप्टिका. देन वी हैव अ निकोटीन. क्या है, निकोटीन है राइट. फ्रॉम टोबैको, ऑब्वियसली फ्रॉम किससे होगा, ये टोबैको से होगा, निकोटीना टैबैकम. देन वी हैव अ सेलेनिन, azardirachtin, chitin एंड मेलियंथोल, मेलियंटियोल. ये किससे डिराइव होता है, फ्रॉम नीम. नीम को क्या बोलते हैं, अजार्डिका इंडिका. देन वी हैव अ पायरेथ्रीन, है. एंड क्या है, सिनेरिया.
ये किससे मिलता है? फ्रॉम कैप्टिकुलम ऑफ पायरेथ्रम, कैप्टिट्यूलम ऑफ पायरेथ्रम, ओके, दैट इज क्रिसैंथम से मिलता है. देन वी हैव अ rhinia, that is roots and a stem of, we are getting from roots and stem of rhinia species. ठीक है, चलो ये हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट, that is microbes in a sewage treatment, microbes in sewage treatment. ठीक है, देखो डायरेक्टली जो गंदा पानी है हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ सकते, नदी में या समुद्र में डायरेक्टली नहीं सकते. वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट प्रॉपर एंड देन वी कैन सेंड इट टू दी वाटर बॉडीज. ठीक है, इससे पोल्यूशन कम होगा. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. इसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, इसको बोलेंगे. तो अभी देखो यहाँ पे ना जो व्हाट वी कैन से म्यूनिसिपल जो वेस्ट है, वाटर इज कॉल्ड सीवेज. जो म्यूनिसिपल अरे यार इस पेन को क्या हो रहा है, 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स. जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको ही क्या बोलते हैं? सुवेज बोलते हैं, राइट, सीवेज बोलते हैं. इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स. ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स. तो इसकी ट्रीटमेंट किससे करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब से करेंगे. ठीक है, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, उसमें ही प्रेजेंट रहते हैं. जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होती है. तो ये फर्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे ब्लू पेन से, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड ये हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ओके, it involves, in primary it involves the physical removal of large and a small particle. It's involve what? Physical removal of large and small particles. थोड़ी हाथ से निकालेंगे नहीं ना, कैसे निकालेंगे? थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो इसमें क्या रहेगा? फिल्टरेशन रहेगा एंड सेडिमेंटेशन रहेगा. ठीक है, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, द प्राइमरी इफ्लुएंट जो इससे मिला है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी इफ्लुएंट. ओके, अभी ये इसको क्या करना है? हमें इसको ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इज द एरेटेड इन अ लार्ज टैंक. इसको क्या करते हैं? एरेटेड इन लार्ज टैंक में एरेटेड करते हैं. अगर लार्ज एरेटेड करेंगे तो थ्रू दिस एरेशन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजेस. क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स है ना इसके अंदर. जो माइक्रोब्स कौन से? एरोबिक है. वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. तो ग्रो करने के लिए यूज क्या करेंगे? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो यूज करेंगे. तो जो टैंक में बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो बढ़ जाएगी. ओके, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल गॉट डिक्रीज. तो जैसे ही बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट? यस और नो? सो ऑक्सीजन यूजफुल कर लिया उसमें से. तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट थी जहाँ में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन यूज किया. सेकेंडरी में एरेशन यूज किया जिसमें बीओडी बढ़ गया और जो डिजोल्व ऑक्सीजन था वो कम कर दिया. तो आगे जाके माइक्रोब्स में ग्रो नहीं करेंगे, राइट? सो दिस वाज अ सुवेज ट्रीटमेंट. देन माइक्रोब्स इन अ बायोफ्यूल्स. माइक्रोब्स इन बायोफ्यूल्स. सो बायोफ्यूल्स क्या है ये? एनीबडी? बायोफ्यूल्स. ठीक है. So biofuels are a fuel of biological origin which are used for the production of a heat. जो बायोफ्यूल्स है वो यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट में, और जिसका ओरिजिन क्या होता है, जो सब्सटेंस यूज होता है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है उसको. ठीक है, लिविंग रहते हैं. द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द बायोफ्यूल इज कॉल्ड अ बायो एनर्जी. और जो एनर्जी करते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बायो एनर्जी बोलते हैं. ठीक है,
सो द बायोफ्यूल्स ऑफर दी एडवांटेजेस, कौन से एडवांटेजेस करते हैं? फर्स्ट, दिस आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, दिस आर व्हाट? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ये, ठीक है? तो पेट्रोल डीजल की तरह ये खत्म नहीं होंगे। दिस रिलीज द रिलेटिवली लो ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस जलने के बाद ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो रिलीज लेस करते हैं, ठीक है? दैट इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, और उसमें क्या होता है? CO2 इमिशन करते हैं, दैट फॉसिल फ्यूल्स के, ओके? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही लो ग्रीन हाउस क्या करेंगे? कम करेंगे, लेस अमाउंट में रहेगा एज कंपेयर टू द पेट्रोल डीजल एंड ऑल। Third point that we are going to talk about, the raw material used in a biofuel production are often wastes, जो raw material यूज होता है ना वो मोस्टली क्या होता है? वेस्ट होता है, ठीक है? इंक्लूडिंग द म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल वेस्ट, तो इससे बायोफ्यूल मोस्टली बनता है। देयरफॉर इट हेल्प्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल, तो ये यूज क्या होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल की तरह यूज होगा, राइट? क्या होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल की तरह यूज होगा। चलो कुछ थोड़े से एग्जांपल हम बायोफ्यूल्स के देखते हैं। लेट्स सी अबाउट दी थिंग्स। सो फर्स्ट एग्जांपल है बायो इथेनॉल। बायो इथेनॉल, जो बायो इथेनॉल है वो किससे मिलेगा? स्टार्च से मिलेगा, डेफिनेटली शुगर क्रॉप से मिलेगा, ठीक है? सो ये जो है वो कौन इसके जो माइक्रोब्स है कौन? बैसिलस अमाइलेज एक्टिविटी करेंगे। बैसिलस जो है लाइचेनी फॉर्मिस, ये अमाइलेज एक्टिविटी को बढ़ा के आपको क्या देंगे? बायोइथेनॉल देंगे, ओके? देन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वेस्ट से भी हमें बायोइथेनॉल मिलता है, जिसके ऊपर काम करेगा सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, सर्विसिए, ठीक है? देन एसिड हाइड्रोलिसिस और एंजाइम हाइड्रोलिसिस भी करेंगे सम, ओके? देन वी हैव अ मीथेन। इन केस ऑफ मीथेन फार्म एंड ह्यूमन वेस्ट, किससे मिलेगा? ये फार्म ह्यूमन वेस्ट से भी ये हमें मिलेगा, ठीक है? म्यूनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट होगा उससे भी ये मिलेगा, इफ्लुएंट फ्रॉम द फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज से भी मिलेगा, डेयरी इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो इसके ऊपर कौन काम करेगा? ग्रुप ऑफ एनारोबिक माइक्रोब, दैट इज कॉल्ड एज मिथानोजेंस, मिथानोजेंस, दैट इज बायोगैस में हमने पढ़े थे, राइट? थर्ड, दैट इज ब्यूटेनॉल, दैट इज ब्यूटेनॉल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स से मिलेगा, वो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। और इसके ऊपर कौन काम करेंगे? क्लोस्ट्रीडियम एसेटो ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम एसेटो ब्यूटाइलियम काम करेंगे, ठीक है? द फोर्थ वन, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन तो हमने पढ़ा है, राइट? हाइड्रोजन एज अ बायोफ्यूल, राइट? सो ये किससे यूज होता है? सनलाइट, वाटर, शुगर, फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड से बनेगा, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारे, आई एम गोइंग टू राइट ओनली द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, और वी कैन से क्लैमोडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास एसेटो क्लैमिडोमोनास, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, क्लैमिडोमोनास स्पीशीज से मिलेगा, और उस स्पीशीज का नाम क्या है प्रॉपर्ली? क्लैमिडोमोनास रेनहार्डिटी, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, रेन हार्डिटाई, रेन हार्डिटाई, ओके? वो हाइड्रोजन देगा, राइट? क्लॉस्ट्रिडियम, इन शॉर्ट क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज भी यहाँ पे पाई जाएगी, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज, ओके? देन वी हैव अ बायो डीजल, जो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, इसमें भी क्या पाया जाएगा? क्लॉस्ट्रिडियम और यूफोरिया स्पीशीज पाया जाएगी। तो हमने ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट किया है, ओके? नाउ, okay, so we are talking about the microbes, right? So microbes with their large population provide, जो microbes होते हैं वो क्या करते हैं? वेरी फास्ट पॉपुलेशन हो जाता है उनका, ठीक है? लार्ज पॉपुलेशन करते, प्रोवाइड द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल कैटेगरीज टू सर्व अ ह्यूमन काइंड। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है तो जो उनका प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी भी क्या बढ़ेगी? क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा
उनका सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। सो डिस्पाइट हैविंग द लीस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स द फील्ड रिमेन अनएक्सप्लोर्ड इन अ सेवरल वेज। मतलब क्या है, माइक्रोब्स इतने सारे हैं, अभी भी हमें क्या करना है, इसका एक्सप्लोरेशन बाकी है, बहुत स्टडी करना अभी भी रिमेनिंग है माइक्रोस पे, right? The ultimate list of products and services will be different through the which the humanity can be served in a better ways. आगे हो सकता है this combination of microbiology with the biotechnology would be the lead outcome in this field. तो बायोटेक्नोलॉजी प्लस हमारी माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों फील्ड मिलके बहुत इम्पोर्टेंट काम कर सकती है इस एरिया